Hello, learners. Hello, learners. I'm audible to all. Am I audible to all? The PP is visible to all or not? The PPT is visible to all or not? Visible, sir. Okay. Let's start the session. In the previous session, we have discussed the meaning of accounting, the meaning of bookkeeping, what is the difference between bookkeeping and accounting, what are the objectives of accounting, what are the branches of accounting. We have already discussed in the previous class. Now, in today's session, we are going to discuss accounting concepts. Just talk about nature of accounting. A question is going to ask, is accounting is a science or is accounting is a art? Is accounting is a science or is accounting is an art? Can anybody discuss or elaborate? What is the nature of accounting? Is accounting is a science or is accounting is an art? What is the meaning of science? What is the meaning of science? Can anybody tell? What is the meaning of science? Can anybody tell? What is the meaning of science? Science is the process of learning about the natural world through observation and experiment. Science uh, is a systematic knowledge which is based on certain assumptions or experiments. Okay. What is Yes, science? Science is a systematic knowledge which is based on some experiment and circumstances. assertions. So, is accounting is a science? Yes, accounting is a science because as as per the science, accounting is also based on some principles. These are known as accounting concepts. So we are going to discuss what are the concept of accounting. And second question is accounting is an art? So what is an art? आर्ट क्या होती है? आर्ट किसे कहते हैं? आर्ट इज अ What is the method. expression of ideas हाँ, and emotions through art physical is a medium? method to present ourselves or our work in attractive manner or systematic manner. Yes, Okay. sir. So is accounting is an art? Yes, accounting is an art because we have entered all the account business transaction in a systematic or chronological form. I have already discussed in the previous class. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लेकर. So these are the principle on which accounting is based. So first we are going to discuss what is accounting principles. What are the accounting principles? In India, there is a basic rule to followed by everyone that should walk or drive on the left hand side on the road. It helps in the smooth flow of traffic. Similarly, there are certain rules that accountant should follow while recording business transactions and preparing accounts. These may be termed as accounting concept. तो जैसे आप देखते हैं हम लोग जब ट्रैफिक में चलते हैं तो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हैं. क्यों रूल्स को फॉलो करते हैं? ताकि सिस्टमेटिकली और स्मूथली ट्रैफिक जो है वो रन कर सके. उसी तरीके से जब अकाउंटेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हमारे ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड करता है तो उससे भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है ताकि जो रिजल्ट आए उन रूल्स अकाउंटिंग मेथड्स को या ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद वो एक सिस्टमैटिक मैनर में हो और जब भी हमको उसकी कभी जरूरत पड़े उसको हम इजीली ट्रैक कर सकें.
The accounting concept refer to the basic assumptions, rules and principles which work on the basis of recording of business transactions and preparing accounts. The main objective is to maintain uniformity and consistency in accounting records. What are the main basic of the accounting principle? To maintain uniformity and consistency in the accounting records. These concepts constitute the very basis of accounting. All the concepts have been developed over the years from experience, and thus they are universally accepted rules. Following are the various accounting concepts that have been discussed in the following section: business entity concept, money measurement concept, going concern concept, accounting period concept, accounting cost concept, duality concept, realization concept, accrual concept, and matching concept. These are the some accounting principles which we discuss in this session. The first one is a business entity concept. Have you heard about asset and liability? Have you heard about asset and liability in the business? Yes, sir. What is a liability? Can anybody tell? What is a liability? Liabilities are the debt that a business owes to third party Yes. creditors. Liabilities are the amount of debt which the business own from the others. I'm going to ask a question. The amount invested by the businessman or proprietor in the business known as capital. All of you know what is capital? The amount invested by the businessman in the business known as capital. Okay. Yes, sir. Is capital is a liability or asset? Is capital is a liability or asset? Capital is an asset to the company. No, Assets. no. Capital is not an asset for the company. Capital is a liability for the company. Why? In your own business, if you invested some amount, that's So it becomes a why it liability is. of the company to return that amount to the person who Yes. invested, right, sir? Yes, बिल्कुल Hmm. बिल्कुल सही बोला आपने कि the amount invested by the proprietor will have to pay by the business at the time of winding up the business. Known as that's why it is treated as liability. And the very basis of behind this is business entity concept. And very basis behind this reason is business entity concept. And what is business entity concept? Let's read this slide. This concept assumes that for accounting purpose, the business enterprise and its owner are two separate independent entities. Okay. So according to business entity concept, a business and a businessman are two separate entities. Thus, the business and personal transaction of its owner are separate. For example, when the owner invests money in the business, it is recorded as liability of the business to the owner. Similarly, when the owner takes away from the business cash or goods for her personal purpose, it is not treated as business expense. Thus, the accounting records are made in the books of accounts from the point of view of the business units and not the person owing the business. Okay. The transactions recorded in the books of account taking point of view of the business unit, not the point of view of the person who owned the business. This concept is very base of accounting. Let us take an example. Suppose Mr. Sahu started business investing rupees 10 lakh. He purchased goods rupees 4 lakh, furniture rupees 2 lakhs 20,000, and plant and machinery rupees 30,000, and 10,000 remains in cash. These are the asset of the business and not for the owner. Okay. If the amount invested by the proprietor in the business and the business purchase some asset for its smooth functioning, those assets will belongs to the business, not to the owner. According to the business entity concept, rupee 1 lakh will be treated as business as a capital, that is liability of the business towards owner of the capital, owner of the business. Now suppose
he takes away 5,000 cash or goods worth rupees 5,000 for his domestic purpose. Domestic purpose means personal purpose. Withdrawal of cash or good from the business is the private expense and not an expense of the business. It is termed as drawings. Thus, the business entity concept states that business and the owner are two separate or distinct persons. Accordingly, any expenses incurred by the owner for himself or his family from business will be considered as expenses and it will be shown as a drawing. ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ? व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट को लेकर है तो मुझसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं. किसी को कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? No, sir. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एनी डाउट? No, sir. तो let's move to the next slide. The following points highlighted the significance of the business entity concept. First one is, this concept help in ascertaining the profit of the business as only the business expenses and revenues are recorded and all the private and personal expenses are ignored. Second assumption is, this concept restrained accountants from recording owners' private personal transactions. Third one is, it also facilitates the recording and reporting of business transactions from the business point of view. And last one is, it is very base of accounting concept, conservations and principles. ठीक है, तो ये हमारे बेसिक अजम्पशंस या सिग्निफिकेंस है हमारे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के. पहला कॉन्सेप्ट ये आपको बता रहा है कि इसमें जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, जो इनकम रिकॉर्ड होगी, वो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू लेके बिजनेस का रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसके ओनर का. दूसरा ये बता रहा है कि जिसमें जो भी प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट हमारा बिजनेस अर्न करता है, ठीक है, as only the business expense and revenues are recorded and all the private and personal expenses are ignored. तो जो भी हमारा प्रॉफिट बिजनेस अर्न कर रहा है, जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं या जो भी बिजनेस का रेवेन्यू है, उसकी रिकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस के नाम से होगी. जो ओनर के पर्सनल एक्सपेंस हैं उनको यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाएगा, उनके पर्सनल एक्सपेंसेस को यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस है हमारे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के. Second one is money measurement concept. In the previous class, we have discussed that only money worth only transactions that have converted in form of money or money's worth would be recorded in the books of account because of this concept, money measurement concept. This concept assumes that all business transactions must be in term of money, that is in the currency of a country. In our country, such transactions are in term of rupee. Thus, as per the money measurement concept, transactions which can be expressed in term of money are recorded in the books of accounts. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है आपको कि कोई भी ऐसा इवेंट या ट्रांजैक्शंस जिसको हम या तो मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या जो ऑलरेडी मनी वर्थ है, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे. एग्जाम्पल देखिए इसका, सेल्स ऑफ गुड्स रुपीज 2 लाख, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रुपी 1 लाख, रेंट पेड रुपी 10,000, etc. are example in term of money, and so these are recorded in the books of accounts. But the transaction which cannot be expressed in monetary terms are not recorded in the books of account. For example, sincerity, loyalty, honesty of the employees are not recorded in the books of account because these cannot be measured in term of money, although they do affect the profit and losses of the business concern. इस टॉपिक में इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के इस पार्ट में किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं. इसके टर्मोलॉजी में किसी को कोई डाउट हो मुझसे तुरंत पूछ लीजिए, मैं आपको तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा उसको दोबारा से. अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं फिर इसमें.
So let's move further. Another this concept is that records of the transactions are to be kept not in the physical units but in the monetary units. तो देखिए इसमें एक चीज तो ये हो गई कि जो भी हम इसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वो मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए. दूसरा वो फिजिकल यूनिट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको मॉनेटरी यूनिट्स में ही रिकॉर्ड करेंगे. जैसे एग्जांपल देखिए, at the end of the year 2021 an organization may have an factory on a piece of land measuring 10 acres, office building containing 50 rooms, 50 personal computers, 50 office chairs and tables, 100 kg of raw material, etc. These are expressed in the different units, but for accounting purpose they are to be recorded in the money term, that is in rupee. In case the cost of factory land may be say rupees 12 crore, office building of rupees 10 crore, computer rupees 10 lakh, office chair and table rupees 2 lakh, raw material rupees 30 lakhs. Thus the total asset of the organization are valued at rupees 22 crores and 42 lakhs. If you sum up all the amount, you will find that amount 22 crores 42 lakhs. Therefore, the transactions which can be expressed in terms of money is recorded in the accounts books. That too in term of money and not in term of the quantity. दोनों चीजें ध्यान रखिए बेटा. जो ट्रांजैक्शंस है उसको हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के फॉर्म में हो या मनी इज वर्थ हो, और जो हमारा असेट है उसको भी हम यूनिट वाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको भी मॉनेटरी टर्म में ही हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे. अब इसके सिग्निफिकेंस क्या देखिए. The significance of the point highlighted by the significance of money measurement concept क्या देखिए. पहला, this concept guides accountant about what to record and what not to record. इस concept से accountant को ये पता लगता है कि उसे कौन से transactions को books of account में record करना है और कौन से transactions को record नहीं करना है. Next, if all the business transactions are expressed in monetary term, it will easy to understand the accountant prepared by the business enterprises. ठीक है, अगर सारे हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम मॉनेटरी टर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारे समझने के लिए और समझाने के लिए दोनों ही टर्म में आसानी होगी इसमें. It facilitate comparison of business performance of two different period for the same firm or the two different firm for the same period. अगर मान लीजिए अपने किसी फर्म को कि दो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या दो फाइनल अकाउंट्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं और वो मॉनेटरी फॉर्म में है, तो उन्हें कंपेयर करना ज़्यादा आसान होगा. और अगर मान लीजिए एक ही तरीके की जो फर्म है जो सेम पीरियड में अपने अलग अलग अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है, तो उनके भी रिकॉर्ड्स को यहाँ पर अगर वो मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड किए गए हैं या मॉनेटरी टर्म में बनाए गए हैं, तो उनको भी कंपेयर करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा अगर वो मॉनेटरी टर्म में होते हैं. तो ये हमारा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया और दूसरा हो गया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. इन दोनों कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं. किसी को डाउट है इसमें? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. नो सर, अभी तो नहीं सर. तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देखिए इसमें दिया हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अ बिजनेस फर्म will continue to carry on its activities for indefinite period of time. अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो कितने समय तक के लिए स्टार्ट करेंगे? हाउ लॉन्ग यू वांट टू योर बिजनेस विल रन? We don't want it to shut it only, sir. We want it to learn for a longer period of time. Yes. Until and unless there is an emergency that all the businessmen something. who starts the business activities wants to their business runs for a long period of time. They do not want to shut down its business in near future. So
this concept says that a business firm will continue to carry on its activities for an indefinite period of time. Simply states, it means that every business entity has continuity of life. Thus, it will not be dissolved in the near future. This is an important assumption of accounting, as it provides a basis for showing the values of asset and balance of in the balance sheet. Have you heard about balance sheet? What is balance sheet? Do you know? The balance sheet represents the exact picture of a company in terms of money Yeah. value. Balance sheet is a statement which shows a true and fair view of the asset and liability of a business in a particular date of time. ओके, तो बैलेंस शीट में हम कौन सी एसेट्स को लेते हैं? बैलेंस शीट में हम लेते हैं फिक्स एसेट्स को. फिक्स एसेट्स क्या होती हैं? देखिए, एसेट दो तरीके की होती हैं. एक होती है फिक्स एसेट और एक होती है करंट एसेट. आपने इस टर्म के बारे में सुना है? करंट एसेट और फिक्स एसेट क्या होती है? सर फिक्स एसेट वो होती है जैसे कि आपका लैंड हो गया, आपकी मशीनरी हो गई, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो सही कि बोला. ज्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती हैं और हमें उससे क्या कहते हैं बेनिफिट ज्यादा लॉन्गर टाइम पीरियड तक. करेंट और होता है वो जो कि सर जो कम टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि फॉर ईयर या फिर कोई चीज हमें अगर कोई मशीन खराब हो गई उसके बदले में कुछ टेम्परेरी बेसिकली फॉर टेम्परेरी यूज, दैट इज करेंट. देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, काफी हद तक सही बताया आपने. द एसेट विच अक्वायर फॉर द to maintain the working efficiency of the business or profitability of business is known as fixed asset. Example, land, furniture, building, equipments. ठीक है, these are all the example of fixed assets. And what are the current assets? Current assets are those assets which have a life of maximum 12 months. Example, debtors, cash in hand, cash at bank. ठीक है, the balances of these assets will be fluctuated. It can be increase or decrease in a same duration of time or accounting period. ठीक है, that's why these assets known as current assets. तो अब देखिए, बैलेंस शीट में हम फिक्स एसेट्स को लिखाते हैं. अभी देखिए, यहाँ पर दो बाइफरकेशंस हुए, करंट एसेट का हुआ, फिक्स एसेट का हुआ. ये किस बेस पे हो रहा है? ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हो रहा है. ऐसी एसेट जो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस यूज करेगा, लेकिन उसका पेमेंट सिंगल टाइम करेगा वो. भाई, अगर अब मैं बिल्डिंग परचेज करता हूं आज, तो मैं बिल्डिंग को कितने समय तक यूज करूंगा? अगर मैंने एक बिल्डिंग आज परचेज की, तो मैं कितने समय तक बिल्डिंग को यूज करूंगा? तो यूज ही करते रहेंगे और उसका यूज मेंटेनेंस करते करते रहेंगे. रहेंगे. हाँ, लॉन्ग बहुत लॉन्ग पीरियड तक, 100 ईयर्स, 500 ईयर तक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने पेमेंट तो बेटा एक ही बार किया उसके लिए, लेकिन यूज कब तक कर रहे हैं? एक लंबे समय तक कर रहे हैं. तो ऐसी एसेट जिनके लिए पेमेंट हमने एक बार किया और उनको यूज लंबे समय तक करते हैं, उन्हें फिक्स एसेट्स कहते हैं. तो जो बाइफरकेशन हो रहा है ये फिक्स एसेट्स का और करंट एसेट्स का, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है. ठीक है, अब आगे देखिए इसी में. For example, a company purchase a plant and machinery rupees 10 lakh and its lifespan is 10 years. According to this concept, every year some amount will be shown as expenses and the balance amount is an asset. अब देखिए, कोई भी मैं एसेट अगर परचेज करता हूं और उसको मैं चाहे यूज करूं या ना करूं, उसकी जो अमाउंट है वो लगातार डिक्रीज होती जाती है. डेप्रिशिएट. आपने लैंड को छोड़कर कोई भी आपने एसेट परचेज की, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी, डिमिनिशिंग होती जाएगी, वैल्यू उसकी कम होती जाएगी. क्यों होगी? क्योंकि लाइफ स्पैम जैसे होगी, लाइफ हमारी स्पेंड होगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, जो ऑब्सोलीट होती जाएगी. इसलिए ठीक है. सर, इस वियर बैंक एंड का टीयर होता current जाएगा यूज से. हाँ, वियर एंड टियर. हाँ, क्या बोला बेटा? सर, इस बैंक का करंट एसेट? हाँ, यस, बैंक इज अ करंट एसेट. बैंक अकाउंट बैलेंस इज अ करंट एसेट. ठीक है, तो अब देखिए, इसमें एग्जांपल में आपको जो बता रहा था कि जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम होगी, जो वैल्यू कम हुई वो हमारा एक्सपेंस है, उसको हम डेप्रिसिएशन मानेंगे, और जो बाकी वैल्यू बची है एसेट की, उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे. ये क्यों हो रहा है? ये फिक्स गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू हो रहा है. Thus, if amount is spent on the life on item will be used for in business for many years, it will be not be proper to change the amount of the revenue of the year in which the item is acquired. Only a part of the revenues value is shown in the expense
in the year of purchase and the remaining balance is shown as an asset. ठीक है, तो ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से क्या होता है, जो हमारी एसेट है उसको हम बाइफरकेट करते हैं फिक्स एसेट्स और करंट एसेट के फॉर्मेट में। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है देखिए, सबसे पहला है दिस कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे भी आपको मैंने बताया कि बेटा अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास फिक्स एसेट्स क्या है, उसका बाइफरकेशन कहां से कर रहे हैं हम, उसका बाइफरकेशन कर रहे हैं हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट है दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स एसेट्स। तभी आपको जैसे बताया भी गया कि जैसे हमारी स्पैन ऑफ लाइफ में अमाउंट होगा और डेप्रिशिएट होता, वैल्यू कम होती जाएगी, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इट इज ऑफ great help to investors because it assure that they will continue to get income on their investment। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए of the year it's purchase in the year of purchase। A business is judged for its capacity to earn profit in the future। अब बिजनेस के पास जो बेटा हमारी अर्निंग कैपेसिटी होगी, अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है बिजनेस की भाई, प्रॉफिट, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, जिसने प्रॉफिट अर्न किया। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारी रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये भी डिसाइड करना में आसान हो जाएगा कि फ्यूचर में बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी रहेगी। तो ये हमारा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसके बेस पे हम अपने बिजनेस एंटिटीज को की जो असेट है उसको दो पार्ट्स में डाइवर्ट करते हैं। एक होता है हमारा फिक्स एसेट और एक होता है हमारा करंट एसेट। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन? No. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अभी देखिए आपने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि द बिजनेसमैन वांट्स टू रन हिज बिजनेस इन indefinite period of time, it do not want to dissolve its business in near future। अब प्रॉब्लम बेटा ये आएगी कि अगर मान लीजिए मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और उसको जब तक मैं एंड नहीं करूंगा, हमारे अकाउंट क्लोज नहीं होंगे, तब तक हम क्या करेंगे, हम तब तक हम अपने फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते। और जब तक हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर और कितना लॉस हमने सफर किया, क्या हमारी एसेट्स हैं, क्या हमारी लायबिलिटीज हैं। तो उस इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या करते हैं, कुछ स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जनरली ये स्लॉट होता है 12 मंथ का होता है, जिसे हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। ठीक है, जो हमारी स्पैन ऑफ लाइफ है बिजनेस की, उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितने लॉस सफर किया या कितनी एसेट्स हमारे पास है या कितनी लायबिलिटीज हमें पे करनी है। तो ये जो स्लॉट डिसाइड होता है 12 मंथ का, या कोई भी कंपनी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्लॉट डिसाइड कर सकती है, या एज पर रूल जो भी स्लॉट होगा वो उसे डिसाइड करना पड़ेगा। उससे क्या कहते हैं, वो डिसाइड होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से। इस कॉन्सेप्ट में देखिए क्या बताया जा रहा है, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द assumption that profit on these transactions are to be ascertained for a period, specified period. This is known as accounting period concept. Thus, this concept requires that a balance sheet and a profit and loss account should be prepared at regular intervals. This is necessary for different purposes like calculation of profit, ascertaining financial position, tax computation, etc. Further, these concepts assume that the entities of the business is divided into parts. These parts are known as accounting period. It may be 1 year, 6 months, 3 months, 1 month, etc. This will be decided as per the convenience of the business entity. But usually 1 year is taken as one accounting period, which may be a calendar year or a financial year. अब बेटा ये कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, लेकिन नीचे बताया गया आपको कैलेंडर ईयर starts from sir January to December and the financial starts from First April. a particular year's 1st April and next year's 31st March and with बिल्कुल सही 31st है। March. देखिए नीचे लिखा भी मैंने, द ईयर दैट बिगिंस फ्रॉम 1st January and ends on 31st December is known as calendar year. The year that begins from 1st April and ends on 31st March of the following year is known as a financial year. As per the accounting period concept, all the transactions are recorded in the books of accounts for a specified period of time.
Hence, goods purchased and sold during the period, rent, salaries, etc., paid for the period of are accounted for against that period only. तो देखिए, अभी आपको ये बता रहा है इसमें कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस या इनकम है जिस अकाउंटिंग पीरियड की, उसकी एंट्री या उसके बेस पे हमारे फाइनल अकाउंट्स बनने चाहिए. अगर मान लीजिए जो एक्सपेंसेस है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन हमने उसकी एंट्री करंट ईयर में कर दी, या कोई ऐसा एक्सपेंस जो इस ईयर से रिलेटेड था करंट ईयर से, लेकिन उसको हम नेक्स्ट ईयर में लेके चले गए, तो क्या होगा, उससे का इफेक्ट क्या पड़ेगा. अगर मान लीजिए मैंने इनकम या एक्सपेंसेस जो करंट ईयर का है उसको नेक्स्ट ईयर में नोट कर दिया, या नेक्स्ट ईयर का उसको करंट ईयर में नोट कर लिया, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी. बैलेंस शीट तो मैच कर जाएगी बेटा, बैलेंस शीट पे इशू नहीं पड़ेगा, लेकिन दिक्कत यह आएगी जो आपका प्रॉफिट आएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा. जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको मैं, मान लीजिए आप लोग जॉब करते हैं, तो जॉब में जो आपको सैलरी मिलती है वो कब मिलती है. जो जॉब की सैलरी अपने एम्प्लॉय को करते हैं या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, लेकिन वो बिलोंग किससे करती है, इस मंथ से. लास्ट भाई अगर मान लीजिए मंथ मैंने मार्च भर जॉब किया, तो मुझे सैलरी कब मिलेगी, मार्च की, अप्रैल के फर्स्ट वीक में. अप्रैल की फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को मिलेगी. लेकिन बेटा वो फर्स्ट अप्रैल की सैलरी है नहीं, सैलरी किसकी है, वो 31 मार्च की. अगर मान लीजिए हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को, और पेमेंट मैं कर रहा हूँ 1 अप्रैल को सैलरी का, तो पेमेंट तो मैंने नेक्स्ट ईयर में किया, लेकिन सैलरी किससे रिलेटेड है, सैलरी लास्ट ईयर से रिलेटेड है. तो अगर मैं इसकी एंट्री प्रॉपर्ली नहीं करूंगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट एक्यूरेट नहीं आएगा, हमारे एक्सपेंस कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा दिखाया देगा. सिमिलरली यही चीज हमारे इनकम में भी होती है. अगर मान लीजिए इनकम मैंने करंट ईयर की नेक्स्ट ईयर में दिखाई, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इनकम कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इनकम कम हो रही है. तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, ये आप पर कहता है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस या इनकम है जिस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड, उसकी एंट्री उसी अकाउंटिंग ईयर में होनी चाहिए. ओके. तो सर इसकी कैसे एंट्री होगी, वो सैलरी वाला आपने एग्जांपल दिया था, वो बेटा मैं 31 आपको कोई उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं. जो 31 मार्च का पेमेंट, उसको मैं बाद में बताऊंगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में मुझे समझाना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग उसमें ऐसे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे. जो कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा उसके लिए दिक्कत नहीं इसमें बेटा, क्योंकि मैं टर्मिनोलॉजी जो यूज कर रहा हूँ. लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, उनको मैं बोलूँ अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, या प्रीपेड रेंट क्या है, या अक्रूड इनकम क्या है, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे. इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी की जब क्लास लूंगा तो उसमें जो मैं बता रहा हूँ टर्म्स, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं अकाउंटेंसी में, उसी क्लास को करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अब इसके सिग्निफिकेंस क्या देखिए. इट हेल्प इन presenting the future prospect of the business. It help in calculating tax on business income calculated for the particular period of time. अब देखिए यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर मान लीजिए हमारा प्रॉफिट एक्यूरेट नहीं आएगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, या तो हम टैक्स ज्यादा पे कर देंगे या टैक्स कम पे करेंगे. ठीक है, तो इसलिए टैक्स का एक्यूरेट अमाउंट पे करने के लिए हमें रिलेटेड ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्री उसी ईयर में करनी चाहिए. इट ऑल्सो हेल्प बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर सेक्टर टू assess and analyze the performance of the business for a particular period. It also help the business firm to distribute their income at regular intervals as dividend. तो ये हमारा हो गया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. अब नेक्स्ट इसके बाद है कॉस्ट कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट states that all assets are recorded in the books of account at their purchase price, which includes cost of acquisition, transportation and installation and not its market price. इसे बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं भाई? ये कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि जो भी एसेट की एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम करेंगे, उसको उसकी उसी कॉस्ट पे हम एंटर करेंगे जिस कॉस्ट पे उसको हमने परचेज किया था. उसमें इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, परचेज प्राइस ऑफ एसेट इंक्लूड होगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड होगी, और जो उसके इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है वो इंक्लूड होगी. उसकी मार्केट प्राइस पे हम एसेट को बैलेंस शीट में या फाइनल अकाउंट में शो नहीं करेंगे.
इसीलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि पुरानी वैल्यू पे लिया जाता है, जो मार्केट वैल्यू करंट है इसकी, इस पर इसको कंसीडर नहीं करते हैं. इट मींस दैट फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, plant and machinery, furniture, etc. are recorded in the books of account at a price paid for them. For example, a machine was purchased by XYZ Limited for rupee 5 lakh for manufacturing shoes. An amount of rupee 1000 were spent on transporting the machine to the factory site. In addition, rupees 2000 were spent on its installation. The total amount at which the machine will be recorded in the books of account क्या होगा बेटा? 5,03,000. ये जो इसमें एक्सपेंस हुए वो भी इसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे. This cost also known as historical cost. Suppose the market price of the same is now rupees 9 lakh, लेकिन हम दिखाएंगे कितने में? 5,03,000 में ही दिखाएंगे. It will not store in the market this value. Further, it may be clarified that cost means original and acquisition cost only for new asset, and for the used ones, cost means original cost less depreciation. The cost concept is also known as historical cost concept. ठीक है? This affect the cost concept is that the business entity does not pay anything for acquiring an asset. This item would not be appear in the books of account. जो भी एसेट बिजनेस ने एक्वायर नहीं किया है उसको बेटा हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं करेंगे. Thus, goodwill appears in accounts only if the entity was purchased this intangible asset for a price. ठीक है? तो गुडविल क्या होती है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है. इंटेंजिबल एसेट क्या होती है भाई? तो बता सकते हैं इंटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं? तो जिसको हम छू नहीं सकते. हाँ, the asset which cannot be touched or seen, known as intangible asset. Example, goodwill, patent right, copyright, trademark, ये सब हमारे क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स हैं. तो इनको बेटा हम केवल फील और टच नहीं मतलब देख सकते हैं केवल, which can be seen but not feel और touch, उन एसेट को हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट कहते हैं. तो गुडविल या कोई भी इंटेंजिबल एसेट, गुडविल के स्पेशली एंट्री हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी करेंगे जब हमने गुडविल परचेज की होगी. एक्वायर्ड गुडविल हमारी है तो उसकी एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे. जो हमारी अर्न गुडविल है उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं की जाती है. अब सिग्निफिकेंस क्या है इसके देखिए. दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स एसेट टू बी शोन एट द प्राइस एट व्हिच इट हैज बीन एक्वायर्ड, व्हिच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स. The effect of cost concept is that if the business entity does not pay anything for an asset, this item will not be shown in the books of accounts. Okay? तो ये हमारा हो गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इसमें किसी को कंफ्यूजन भाई कॉस्ट कॉन्सेप्ट में? कॉस्ट कॉन्सेप्ट में किसी को कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं मुझसे. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बेटा से कहते हैं डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट या डुअलिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसको. देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो बिजनेस इवेंट या ट्रांजैक्शन होता है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्टेड करता है. तो डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट आपसे यही कहता है. इसमें एक इक्वेशन होती है जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ठीक है? तो कोई भी बिजनेस इवेंट या ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो. ठीक है? अब पढ़ते हैं. देखिए डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट इज द फाउंडेशन और द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. इट प्रोवाइड दैट वेरी बेसिस ऑफ recording business transaction is the books of accounts. This concept assumes that every transaction has a dual effects. That is, it affects 2 accounts in their respective opposite sides. Therefore, the transaction would be recorded at 2 places. It means both aspects of the transaction must be recorded in the books of accounts. For example, goods purchased for cash. अगर ये एग्जांपल देखिए मैंने दिया आपको गुड्स परचेज फॉर कैश. अगर गुड्स परचेज फॉर कैश हुआ तो कौन से अकाउंट इफेक्टेड होंगे इसमें भाई? गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट. गुड्स को परचेज किया तो परचेज अकाउंट. ठीक है? देखिए 2 चीजें होंगी इसमें. क्या होगा? जब गुड्स को परचेज करेंगे तो गिविंग ऑफ कैश होगा और रिसीविंग ऑफ गुड्स होगा. यही होगा बेटा. जब गुड्स को परचेज करेंगे क्या होगा?
गिविंग ऑफ कैश, Yes, sir. रिसीविंग ऑफ Purchase. गुड्स। यहाँ पर देखिए these two aspects are to be recorded, क्या giving of cash and receiving of goods. Thus the duality concept is commonly expressed in the following expressed in term of fundamental accounting equation, that is asset is equal to liability plus capital. The above accounting equation states that the asset of a business are always equal to the claims of the owners and the outsiders. This claim also termed as capital or owner's equity, and that of outsiders as liabilities or creditors equity. जो कैपिटल होती है इसे ओनर्स इक्विटी कहते हैं और जो लाइबिलिटी होती है इसे क्रेडिटर्स इक्विटी कहते हैं. The knowledge of dual aspect help in identifying the two aspects of transactions, which help in applying the rule of recording the transactions in the books of accounts. The implication of dual aspects concept is that every transaction has an equal impact on asset and liabilities in such a way that total assets are always equal to the total liabilities. तो मतलब कोई भी इवेंट ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये हमारा जो आपको मैंने दिखाया इक्वेशन इज सेटिस्फाइड होगी. अभी कैसे होगी मैं बाद में जब बताऊंगा क्लास में होगा, तो क्योंकि इसमें एग्जांपल देने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के, तब आप समझ पाएंगे. ठीक है. The interpretation of the dual aspect concept is that every transaction has equal effects on the asset and liabilities in such a way that total assets are always total liabilities of the business. Significance क्या है इसके देखिए. The concept help accountant in detecting errors. अब देखिए हमको ये मालूम है कि जो हमारी दो भी इवेंट होगा उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे और दोनों एस्पेक्ट्स की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम करेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल मैच करना चाहिए बैलेंस शीट में. मान लीजिए, या उसको हम एसेट और लायबिलिटी साइड कहते हैं. अगर मान लीजिए बैलेंस शीट की एसेट या लायबिलिटी साइड टैली नहीं करती है तो क्या होगा, वहां पर एरर डिटेक्ट हो जाएगा. या ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली नहीं करता तो एरर डिटेक्ट हो जाएगा. ठीक है. उससे क्या हो सकता है, अकाउंटेंट को हेल्प मिलती है उस एरर को डिटेक्ट करने में या पता लगाने में कहां पर एरर हुआ है. It encourages the accountant to post each entry in the opposite side of two effects. ठीक है. तो ये अकाउंटेंट को बताता है कि आप बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके दोनों एस्पेक्ट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है मेंशन करेंगे. ये बेटा हमारा हो गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. अब नेक्स्ट है इसके बाद रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देखिए क्या बता रहा है ये. दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन should be included in accounting records only when it is realized. The term realization means creation of legal rights to receiving money. Selling goods is realization. Receiving order is not. In other words, it can be said that revenue is said to have been realized when cash has been received or right to receive cash on the sale of goods or services और both have been created. इसका देखिए शॉर्टेस्ट मतलब छोटे में आपको मैं समझा देता हूँ. इसका मतलब ये है कि कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम तभी एंटर करेंगे जब उसमें कैश या तो रियलाइज हो गया हो या रियलाइज होने के लिए हमारे पास राइट आ गया हो. जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. if you sold goods to Ram on credit on 15th April and Ram paid the amount of the goods on 28th April, in which date you pass the entry for sale of goods, 15th April or 20th April? 15th April. लेकिन बेटा कुछ तो आपने उस दिन बेचा, रियलाइज तो पैसा हुआ नहीं. No sir. क्यों करोगे? अगर आपने 15th अप्रैल को गुड्स को बेचा और उसका अमाउंट रियलाइज हो रहा है 20th अप्रैल को, तो आप एंट्री 15th अप्रैल को क्यों करोगे? 20th अप्रैल को क्यों नहीं करोगे? Sorry 20th अप्रैल ही होगा. नहीं, आप सही बोल रहे थे, 15th अप्रैल होगा. आपने देखिए पढ़ा sorry. नहीं है. गुड्स ऑन क्रेडिट. ये देखिए क्रेडिट बेस पे लेंगे. ये देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये
It क्रेडिट include में the जाएगा ना? हाँ, क्रेडिट में जाएगा। आपके पास राइट आ गया, अगर आपने गुड्स को बेचा है क्रेडिट पे, तो यू हैव द राइट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द गुड्स। यस सर, ठीक है, क्रेडिटर पे अगर आप जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 अप्रैल को ही इसकी एंट्री हम करेंगे पहले। 20 अप्रैल को जब पैसे रिसीव होंगे तो फिर एंट्री करेंगे अमाउंट रिसीव होने की, यस लेकिन जो सर, सेल की एंट्री होगी वो 15 अप्रैल को ही होगा। यही आपको बता रहा यस हूँ। सर, अच्छा, एक चीज और इसमें है कि अगर आप ऑर्डर रिसीव करते हैं या ऑर्डर पोस्ट करते हैं तो उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डर रिसीव करना और ऑर्डर पोस्ट करना बिजनेस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं माना जाता। ठीक है, यस इसलिए ऑर्डर रिसीव करना और ऑर्डर पोस्ट करना कोई बिजनेस इवेंट या ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होगी। In other words, it can be said that revenue said to have been realized when cash has been received or right to receive cash on the sale of the goods or services or both have been created. अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, MP Jewelers receive an order to supply gold ornament rupees 5 lakh. They supplied ornaments worth rupees 2 lakh up to the year ending 31st December अंकिता म्यूट कर लो, 2000. है बेटा? अंकिता म्यूट कर लो, तुम्हारी बात है। And rest of the ornaments were supplied in January 2022. So how much amount he would receive in up to December 31st, 2021? 5 lakh rupees or 3 lakh, 2 lakh rupees? चलो रिपीट कीजिएगा। NP Jewelers receive an order to supply goods on gold ornaments worth rupees 5 lakh. They supplied ornament rupees 2 lakh up to the end up to the year ending 31st December 2021, and rest the ornaments were supplied in January 2022. How much amount he would receive up to 31st December? 5 lakh or 2 lakh? टू लैक्स। Yes, because he received only order rupees 5 lakh, but यस he सर, delivered only rupees 2 lakh goods. That's why यस, he would like to receive rupees टू लैक्स। 2 lakhs. Bansal sold goods rupees 1 lakh for cash in 2018. Goods have been delivered during the same year. How much amount Bansal have been received? 1 lakh, 1 lakh, because all the goods have been delivered to the debtor. Akshay sold goods on credit rupees 50,000 during the year ending 31st December 2020. The goods have been delivered in 2021, but the payment was received in March 2021. So, how much amount he will like to receive in up to the 30th December? 50,000 को पेमेंट मिल गया है, 50,000 गुड्स बाद में plus. मिले हैं। 50,000 की एंट्री है, 31st दिसंबर को कर लेगा, भले ही इसका पेमेंट बाद में मिले, उसको यहाँ पे अमाउंट रियलाइज मान लिया जाएगा ना। तो यही आपको मैं एग्जांपल बता रहा था, इसके मैं इसको डिटेल में नीचे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अभी मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे एंट्री को पास करते हैं, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कैसे होता है। In short, the realization occurs when the goods and services has been sold either for cash or on credit. It also refers to the inflow of asset in form of receivables. अगर मान लीजिए बेटा मैं कैश तुरंत रिसीव हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर रिसीव नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे रिसीवेबल्स कहते हैं। Significance of this concept: it help in making the accounting information more objective. It provides that the transaction should be recorded only when goods are delivered to the buyers. Okay, these are the two significance of this concept. Next concept is accrual concept. देखिए जो इसमें दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अभी मैं जो आपको बताऊंगा सेम चीज यहां पर भी है, जो अपने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में पढ़ी वही अक्रूवल कॉन्सेप्ट में भी है, लेकिन रियलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो सेल परचेस रिलेटेड है, और जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है ये एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड है। दोनों में डिफरेंस नहीं है बेटा बहुत ज्यादा, बस डिफरेंस क्या है, जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो सेल परचेस रिलेटेड है, और जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड है। देखिए, the meaning of accrual is something that becomes due, especially an amount of money that is yet to be paid or received at the end of the accounting period. It means that revenue are recognized when they become receivable, though cash is received or not received, and the expenses are recognized when they become payable, though cash is paid or not paid. Both transaction will be recorded in the accounting period to which they relate. जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल दिया था 31st दिसंबर की सैलरी वाला,
वो इसी कारण होता है कि जिस अकाउंटिंग ईयर से हमारे एक्सपेंसेस रिलेटेड होते हैं उसी अकाउंटिंग ईयर में उसको कंसीडर किया जाएगा, भले ही उसका पेमेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में किया गया हो। Therefore, the accrual concept make a distinction between accrual receipt of cash and the right to receive cash and regard revenue and actual payment of cash and obligation to pay cash as regard expenses. The accrual concept under accounting assumption that revenue is realized at the time of sale of goods or services in respective of the fact when the cash is received. For example, a firm sale goods rupees 55,000 on 25th March 2020 and the payment is not received till 10th April 2020. The amount is due and payment payable to the firm on the date of sale, that is 21st March 2020. It must be included in the revenue for the year ending 31st March 2020. Similarly, expenses are recognized at the time services provided in respective of the fact when actual payment of these services are made. For example, if the firm received goods costing rupees 20,000 on 29th March 2020, but the payment is made on 2nd April 2020, the accrual concept requires that expenses must be recorded for the year ending 31st March 2020, although no payment has been made till 31st March 2020. Though the service has been received and the person to whom the payment should have been made is shown as creditor. In brief, accrual concept required that revenue is recognized when realized and expenses are recognized when they become due and payable without regard to the time of cash receipt or cash payment. देखिए सिमिलर नेचर है दोनों का। आपको जैसे मैंने बताया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले में गुड्स को रियलाइज करते हैं, नीचे वाले में एक्सपेंसेस और इनकम को रियलाइज का बारे में बताया गया है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या देखिए, इट हेल्प इन नोइंग एक्चुअल expenses and actual income during a particular period of time. It help in calculating the net profit of the business. ये दो इसके कॉन्सेप्ट हैं। अब नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। The matching concept states that the revenue and the expenses incurred to earn the revenues must belong to the same accounting period. So once the revenue is realized, the next step is to allocate it to the relevant accounting period. This can be done with the help of accrual concept. The matching concept implies that all revenues earned during the accounting year, whether received or not during that year, and all expenses incurred, whether paid or not during the year, should be taken into accounts while ascertaining profit or loss for that year. ठीक है, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट भी आपको ये बता रहा है कि जिस ईयर की इनकम और जिस ईयर की रेवेन्यू है, जिस ईयर के एक्सपेंसेस हैं, उसको उसी ईयर में हम उसमें रिकॉर्ड को करेंगे। इट गाइड्स हाउ द एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू और डिटरमाइनिंग इफेक्ट ऑफ exact profit or loss for a particular period. It is very helpful for the investor shareholder to know the exact amount of profit or loss of the business. ठीक है, तो ये हमारा हो गया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के पार्ट। अब इसके बाद आता है अकाउंटिंग कंजर्वेशंस। An accounting conservation refer to the common practice which are universally followed in accounting, recording and presenting accounting information for the business entities. They are followed like customs, traditions, etc. in society. तो देखिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं बेटा, ये क्या होता है, ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट पे बेस होते हैं। ये क्या होते हैं, अकाउंटिंग कंजर्वेशन एक कॉमन प्रैक्टिस होती है हमारी, जिनको हम लोग बेस करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, या अपने समझ लीजिए थॉट्स से। तो इसमें बेटा दो तीन चीजें, एक है कंजर्वेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंजर्वेशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होती है, जैसे अकाउंटिंग के कई मेथड्स होते हैं, तो आपने जो मेथड ऑप्ट किया है उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक बार कैश बेस्ड अकाउंटिंग को यूज किया। कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है कि कैश ट्रांजैक्शंस को मैं नोट करता हूं। तो अगर मैं एक्रूअल अकाउंटिंग को यूज कर रहा हूं तो मैं कैश अकाउंटिंग को अगले ईयर में, या एक्रूअल अकाउंटिंग से कैश अकाउंटिंग में, या कैश अकाउंटिंग से एक्रूअल अकाउंटिंग में बार बार शिफ्ट नहीं करूंगा। जो भी प्रैक्टिस मैंने यूज की है
उसको मैं लगातार कॉन्टिन्यूसली यूज करूंगा, बार बार उसमें चेंजेस नहीं लाऊंगा। तो ये होती है कंजर्वेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। द कंजर्वेशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स दैट सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल should be used for preparing financial statements year after year. A meaningful conclusion can be drawn from the financial statement of the same enterprises when there is a comparison between them over a period of time, but this can be possible only when accounting period policies and practices followed by the enterprises are uniform and consistent over a period of time. If different accounting procedures and practices are used for preparing financial statements of different years, then the result will not be comparable. Generally, a businessman follows the under mentioned general practices or methods and year after year while charging depreciation on fixed assets or valuing unsold stock. Once a particular method is used, it should बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद होता है कंजर्वेशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो देखिए, जो भी हमारे मटेरियल फैक्ट्स हैं और रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम यहाँ पर फुल डिस्क्लोज करेंगे अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। ये हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसे कहते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, जहाँ पर जो भी हमारे मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, जो रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए जानना इंपॉर्टेंट है, उन सबको फुली, फेयरली और एडिक्वेटली हम डिस्क्लोज करेंगे अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ। ये हमारा होता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फिर आता है अकाउंटिंग ऑफ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो इसमें भी देखिए, जो मटेरियल फैक्ट्स हमारे हैं, ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सप्लाइड ऑफ गुड्स रिलेटेड हैं, या और भी कोई रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन हैं जो हमारे मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड हैं, उन सबको भी हम अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के साथ यूज करेंगे। मतलब कहने का जो मेजर फैक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई मशीनरी परचेज की या कोई इक्विपमेंट परचेज किया, ठीक है, या बिल्डिंग परचेज की, तो उसको बड़ा हम लोग जो अपनी अकाउंटिंग बुक में अलग से नोट्स के साथ या इंफॉर्मेशन के साथ शो करेंगे। लेकिन जो इनरिलेवेंट फैक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई मैच बॉक्स परचेज किया या पेंसिल परचेज किया, स्टेशनरी परचेज की, तो उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी होता है अकाउंटिंग के टर्म के अकॉर्डिंग या अकाउंटिंग के बारे में। और लास्ट इसमें होता है कंजर्वेशन और अकाउंटिंग ऑफ कंजर्वेशंस। ठीक है, तो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रहा है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट जो हमारा ये है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। इसमें बता रहा है कि एंटीसिपेट जो हमारा प्रॉफिट है उसके लिए हम कोई रिजर्व नहीं करेंगे पहले से, लेकिन जो एंटीसिपेटेड लॉस है या जो हमारे ऑल पॉसिबल लॉसेज हैं, उनके लिए हम पहले से कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, कुछ ना कुछ रिजर्व रखेंगे। प्रॉफिट के लिए क्यों नहीं रखेंगे भाई? लॉस के लिए क्यों रखेंगे? बता सकते हैं? हम प्रॉफिट के लिए क्यों नहीं रिजर्व करेंगे, लॉस के लिए क्यों करते हैं? अगर लॉस नहीं होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा भाई? देखो ना, ऐसा है, अगर मान लीजिए मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और एक मेजर लॉस हमारे बिजनेस को हो गया, तो उससे हमारा क्या होगा? उससे हमारा बिजनेस डिसॉल्व होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, और एक मेजर अमाउंट उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा बिजनेस से, तो हमारी जो कैपिटल है, जो हमारी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो खत्म हो जाएगी अगर हमने उसके लिए पहले से प्रोविजन नहीं किया तो। लेकिन अगर प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए तो हमें कुछ करना नहीं है। आज नहीं तो कल प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा हमको। लेकिन अगर लॉस ज्यादा बड़ा हो गया तो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डाल सकता है, उसकी लाइफ पे इफेक्ट डाल सकता है, बिजनेस की वर्किंग पे इफेक्ट डाल सकता है, बिजनेस की फाइनेंशियल असिस्टेंस पे इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए हमको वहां पर लॉस के लिए तो रिजर्व करना जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट के लिए रिजर्व करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन है जिसके कारण हम एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए तो रिजर्व करेंगे, लेकिन एंटीसिपेटेड प्रॉफिट के लिए रिजर्व नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर का पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट होना है अभी, तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर मैम ने ज्वाइन किया है तो
किसी का कोई डाउट नहीं है भाई इसमें? हेलो हेलो। हेलो सर एक्चुअली डाउट नहीं है बट अगर जैसे मुझे रिवाइज करना हो तो इसके स्लाइड्स मुझे कहाँ मिल जाएंगे? मैं भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर दूंगा पूरे, जैसे मैंने लास्ट क्लास के किए थे इस क्लास के भी सर मैं शेयर बिकॉज कर। मुझे एक्चुअली पता नहीं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे स्लाइड मुझे मिल सकते हैं सो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सर उस पे वही मैंने पिछले ग्रुप का पिछले लिंक अभी मुझे शेयर नहीं हुआ है तो मैं शायद उस ग्रुप में हूँ नहीं। अच्छा, तो आपको ये इसकी फिर इंफॉर्मेशन कैसे मिली यहाँ की क्लास की? सर क्लास की काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन मुझे मेल के द्वारा मिला था तो मुझे लिंक उसमें मिल गया बट मेल में मुझे व्हाट्सएप का कोई लिंक नहीं मिला है। और बाकी लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया उनको लिए क्या कोई लिंक मिली थी उनको? नो आइडिया सर। किसी को बेटा लिंक मिली थी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जी करने सर की? मिली थी मेल पर। Yes, sir, मिली थी। बेटा एक बार आप मेल चेक कीजिए, अगर आपको मिली है इसकी लिंक तो 100% व्हाट्सएप लिंक भी आई होगी, और अगर नहीं आई है तो मिली सर मैंने चेक तो किया है आरसी मुझे लखनऊ है, लिंक मिला आरसी नहीं लखनऊ है इसीलिए मैं आरसी लखनऊ को बेटा एक आप मेल कर दीजिएगा तो आपको उसमें जो है ऐड कर लेंगी मैम जो भी ओके होंगे वहाँ पे, ठीक है? आप आरसी लखनऊ ओके को एक मेल कर दीजिएगा तो वो आपको ऐड कर देंगे उसमें। ओके। ओके थैंक यू सर अच्छा हाँ सर बताइए एक क्वेश्चन था। जी, सर जो पूछिए। आपने बैलेंस शीट की बात की थी तो उसमें जैसे फाइनेंशियल ईयर की हम बात करते हैं तो कई सारी एमएनसीज होती हैं जिनके लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सिचुएटेड होती है, तो उनके लिए क्या मल्टीपल बैलेंस शीट बनती, बिकॉज हर कंट्री हाँ का बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर अलग अलग हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल 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 सही बोला। और जितनी भी बेटा ऐसी कंपनीज एमएनसीज हैं वो हाँ जिस कंट्री में काम कर रही हैं उस कंट्री हाँ के अकॉर्डिंग उनका फाइनेंशियल ईयर डिसाइडेड होता है। तो जो हाँ उनका फाइनेंशियल ईयर डिसाइडेड होता है वो हिसाब से अपनी कंपनी को बनाती है, लेकिन जो उसकी हेड ऑफिस होती है वो हाँ। उनको क्लब करके उनके जो प्रॉफिट आते हैं उस रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन पीरियड के उनको क्लब करते हुए फाइनल बैलेंस शीट बनाती है उनकी मेन कंपनी। तो अगर अगर मान लीजिए चार कंट्रीज के एक मतलब अगर चार 5 कंट्रीज में है तो उसमें से एक जगह हेड ऑफिस है तो 4 बैलेंस शीट बनेंगी अलग अलग कंट्रीज की और एक हाँ फाइनल बिल्कुल, बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट तो वो वो बनाएगी जो हेडक्वार्टर बनाएगा उसका। हाँ हेडक्वार्टर बनाएगा। तो जो हेडक्वार्टर बनाएगा तो उसमें जैसे हर कंट्री के में हेडक्वार्टर से कुछ मनी जाएगा या ऐसा कुछ जाएगा, तो जो फाइनल बैलेंस शीट होगी वो जिस कंट्री में उसके हिसाब से बनेगी, भले दूसरी कंट्री में फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ हो या ना हुआ। तो उस केस में जैसे मान लीजिए अमाउंट गया है तो उस अमाउंट को जो भी उनका हेड ऑफिस का जो क्लोजर डेट है उसी को फाइनल मान के कर देंगे। बाकी बिल्कुल अमाउंट जो एक्सपेंस आएगा वो नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल होता बिल्कुल है। सर, जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, और थैंक यू। और किसी को कोई डाउट भाई? मैम ने ज्वाइन किया बड़ा अभी, मैम की क्लास है शायद। Yes, sir, I have joined. ओके Thank you, मैम, sir. थैंक यू मैम।